Hello, Namaskar, Adab, Kasakai, Kero Halai, Kem Cho. Welcome to yet another episode of Spotlight with Abha, and I'm your host, Abha Jadhav. Friends, today we have a revolutionary personality who is onto the mission of empowering humans. His eye-opening writings have created a revolution in the world of media. He is currently working as system in charge and coordinator in Delhi Public School, Gaya, Bihar. He is also the chief editor at World Peace. Before I call him, let me read out his two lines composed by himself. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न था कर रो बयां। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न था कर रो बयां. Which means the reason for creation of humans is to love and compassion for others. Else, for obedience, the angels did not have a match. Friends, please help me welcome Syed Danish, the Chief Editor of World Peace from Gaya, Bihar. Welcome, Danish, to Spotlight with Abha. Thank you, madam. Thank you so much for inviting me. So, friends, Syed Danish is also serving society through various other means apart from being an educator. He is Chief Editor, Sher Ghati Darshan News along with World Peace, Global Ambassador for Human Empowerment India in Success World 1 France, International Ambassador in World Knowledge Summit Mexico, and founder of Rahmat-e-Mustafa Social Welfare Trust. There are many more, but it will be better if we hear it from Syed Danish himself. So, to begin with, Danish, can you please tell us about your career journey? Thank you, Abaji. I started my career from Karim City College, Jamshedpur, where I was in the Department of Education and IGNOU Study Center as System in Charge and Coordinator. I worked 6 years in Karim City College and handled 2 important departments and conducted a lot of examinations, handled many classes as well as accounts. In 2018, I founded Rahmat-e-Mustafa Social Welfare Trust, and there are 4 important issues of our society I mentioned there. First is education, second is health, third is employment, and fourth is awareness. And through Rahmat-e-Mustafa Social Welfare Trust, I developed a saving training center in my native place, Hamzapur, Bihar, and where I started this saving training center free of cost, and I empower women there. And I also started many campaigns through Rahmat-e-Mustafa Social Welfare Trust, and I also donated in Prime Minister Relief Fund and many state Chief Minister Relief Fund. In 2020, I started Sher Ghati Darshan News for media and for the educators and social workers who are working on the ground. Sher Ghati Darshan News के जरिए हमने काफ़ी लोगों की न्यूज़ कवर की, और मैं किसी से भी न्यूज़ कवर करने का पैसा नहीं लेता था, क्योंकि ये एक मेरा शौक़ था, और मैं इसके ज़रिए काफ़ी लोगों को, जो वैसे लोग थे जिनको कोई नहीं जानता था, जो अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में, काफ़ी अच्छा वो अपना दे रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसे लोगों को कोई भी नहीं जानता था, तो मैंने शेर घाटी दर्शन न्यूज़ के ज़रिए उनको प्रमोट करने का काम किया और उनको मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके आया। फिर मैंने सोचा बाद में कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए,
देन मैंने फिर 2020 के लास्ट में मैंने वर्ल्ड पीस के नाम से एक स्टार्ट किया मैंने, और इसमें मैं इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ को मैंने कवर करना शुरू किया। और वर्ल्ड पीस के साथ साथ मैं हमेशा भारत की जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जो हमारी है, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, और जिस चीज़ के लिए हमारा देश जाना जाता है, मैंने उस चीज़ को वर्ल्ड पीस के जरिए काफ़ी बड़े लेवल पे प्रमोट किया और कर भी रहा हूँ मैं। और मैंने 2 साल अपनी ज़िंदगी का कॉरपोरेट को भी दिया है। कॉरपोरेट सेक्टर में मैंने जॉब किया, और मैं झारखंड में वहाँ पे मैं कस्टमर केयर ऑफिसर था पूरे झारखंड रीजन का, और मैं वहाँ पे डीलर और ये कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन करता था। वाओ, सो आपने इतनी जगहों पर अपना योगदान दिया है, और किस तरह से आप हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ये हम आए दिन देख ही रहे हैं कि बिल्कुल आप एक जुझारू मीडिया पर्सन की तरह हर एक समाचार हम तक पहुंचाते हैं, और ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि विदेशों से भी जो भी कोविड को लेकर के भ्रांतियां हैं या और भी जो भी कोई न्यूज़ हैं, आप बहुत शार्पली हम तक पहुंचा देते हैं। मुझे लगता है शायद न्यूज़पेपर वाले भी इतना फास्ट नहीं करते होंगे जितना आपका न्यूज़ चैनल जो है वो स्पीड से आता है। सो यू आर कोऑर्डिनेटर इन ब्लड ऑर्गेनाइजेशन एट डीपीएस। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा आप हमसे बताइए कि ये ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या है ये ब्लड ऑर्गेनाइजेशन जो है आभा जी, ये बिहार की है कर्णभूमि रक्तदान सेवा समिति, और झारखंड की है एक बोकारो रक्तवीर परिवार। इसके साथ मैंने वर्ल्ड पीस को कोलैबोरेशन किया। मकसद हमारा ये था कि जो भी लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमें इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और उस वक्त हम काफ़ी पैसा भी खर्चा करते हैं। तो मैंने ये कोलैबोरेशन किया, और इसके ज़रिए मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लोगों की ब्लड के ज़रिए मदद कर रहा हूँ उनकी, और इसका मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ लोगों से। वो मतलब हमारे पास अगर 12 बजे रात में भी कॉल करते हैं तो उनको मैं ब्लड उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और इसका मैं कोई भी चार्ज किसी से नहीं लेता हूँ। ये एक मतलब बस हमारा है कि इसके ज़रिए मानवता की मदद होनी चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए। और हमारी कोशिश हमेशा रही है कि हमारी जो तहजीब जो हमारी है, हिंदू मुस्लिम की एकता है, तो वो आपको ये मजबूत हो, और ये अगर मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, आपके जो सोच है उसको सलाम करती हूँ, और वाकई में जब एक इतनी पवित्र और इतने पायस मोड से जब हम कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली जो ऊपर वाला है वो हम सबको उसकी आगे काम करने की खूब सारी हमें बरकत देते हैं, हमें खूब सारी मदद देते हैं। सो आप शेर घाटी दर्शन न्यूज और वर्ल्ड पीस के चीफ एडिटर हैं, जो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप दोनों के लिए काम अपना कर रहे हैं। तो किस तरह से आप मीडिया की तरफ मोटिवेट हुए? क्या ऐसी चीज हुई जिससे आपको लगा कि मुझे न्यूज वर्ल्ड में आना चाहिए, मास मीडिया में आना चाहिए, और लोगों के लिए एक ऐसा चैनल खोलना चाहिए जहां तक आप लोगों को न्यूज पहुंचाएं? जी, अब ये मुझे बचपन से ही भगवान ने मुझे काफ़ी चीज़ें ये टैलेंट दिया उसने मुझे, और उसमें एक पत्रकारिता भी है। मैं एक अच्छा लिख सकता हूँ किसी भी मुद्दे पे, और मैं अपनी राय बहुत बेबाकी से रखता हूँ। और मैं जब किसी भी चीज़ को लिखता हूँ तो मैं सोचता नहीं हूँ, मैं बस हमारे दिमाग में आता रहता है वो, और मैं उसको लिखता रहता हूँ। मैं बड़ी से बड़ी न्यूज़ भी मैं 5 मिनट से 10 मिनट में लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने जब ये कहा कि जब हमारे अंदर ये चीज़ है अगर, तो मैं इस चीज़ का फिर यूटिलाइज कर सकता हूँ। और फिर मैंने देखा कि मीडिया का जो हाल है, मीडिया जो हमसे सच नहीं बताता है वो, और एक बड़ा वर्ग जो है इससे प्रभावित होता है। मैंने सोचा कि मैं अपनी कलम की ताकत को इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और जो हमारी मेन चीज़ है, जो हमारा मुद्दा है, उसको मैं उठाऊँगा इसके ज़रिए। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, और आज इसके ज़रिए मैंने काफ़ी लोगों की न्यूज़ अब तक मैं कवर कर चुका हूँ,
और एक अच्छा माहौल में ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्ल्ड पीस के जरिए। बहुत ही बढ़िया। मीडिया में आने की वजह बस हमारी यही है कि मैं एक अच्छा लिखता हूँ, तो मैंने कहा कि इस चीज को बड़े लेवल पे करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया और नेक आपका विचार है। एंड हम देख रहे हैं कि आपने जो वर्ल्ड पीस का फेसबुक पेज बना रखा है या व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपने तमाम दुनिया के लोगों को, बड़े बड़े लीडर्स को, काफी फेमस एजुकेटर्स को, आपने सबको उसमें इन्वॉल्व किया है। वहां सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस और न जाने कितने देशों के लोग वहां पर शामिल हैं। सो ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और जो मैं देख सकती हूँ कि आप किस शिद्दत से उसके पीछे काम कर रहे हैं, सो आपके हौसलों को डेफिनेटली सलाम है और आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो आप मुझे ये बताएं कि ग्लोबल आप एक ह्यूमन एम्पावरमेंट इंडिया सक्सेस वर्ल्ड 1 फ्रांस के ग्लोबल एम्बेसडर हैं। तो आप ह्यूमंस को, इंसानियत को या मानवता को किस तरह से एम्पावर कर रहे हैं? जी, मानवता को आभा जी, मैं ये समझता हूँ और हमारे दिलो दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहता है कि दुनिया में चाहे आप कहीं भी रहिए, चाहे मैं भारत में रहता हूँ, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, चाहे कोई कहीं भी रहता है, मानवता के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। मैं जब मानवता पे देखता हूँ कि ये उन पे ये हमले हो रहे हैं, मानवता का हनन हो रहा है, तो वहाँ पे मैं कम से कम, मुझे ये खुशी होती है कि वर्ल्ड पीस के जरिए मैं उस चीज़ को शायद कुछ हद तक कर पा रहा हूँ। मैं उन लोगों की आवाज़ को उठा रहा हूँ और ये जो उन पे जुल्म हो रहा है, जो उन पे बर्बरता हो रही है, उन्हें एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं उन सब ये चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक इस चीज़ में कामयाब भी हो रहा हूँ। लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और वो ये हमारी खबरों को वो ये पढ़ते भी हैं, तो इसके ज़रिए मैं उन लोगों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मैं सच लिखता हूँ वहाँ पे, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उस चीज़ को हमें बढ़ाना चाहिए, हमें उस चीज़ को लिखना चाहिए। तो जब आप इतनी बेबाकी से जब इस तरह के सच छापते हैं, तो क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स मिले हैं आपको अब तक? अभी तक नहीं। देखिए आबा जी, मेरा जो सच है ना, वो सच मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट ना ही सरकार है, मेरा टारगेट ना ही कॉरपोरेटर है, और मेरा टारगेट ना ही ये पॉलिटिशियन है। मुझे किसी से कोई ये नहीं है, बैर नहीं है किसी से। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमारा जो देश है, हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, हर भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और सच को ये लिखना या ये कहना जुर्म नहीं है। ये अगर आप किसी की जिंदगी को बचाने का काम कर रहे हैं, किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का काम कर रहे हैं, तो ये जुर्म नहीं है ये। और मैं ये सरकार के खिलाफ मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। हमारी सरकार है, वो अपने लेवल से काम कर रही है, मैं उसके ये किसी भी काम में मैं दखल नहीं देता हूँ। हमारे जो ये पीएम हैं, उनके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है, बिकॉज ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड वो मतलब अपने लेवल से अपना काम कर रहे हैं। वो मुझे उस काम में किसी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, वो कम से कम मजबूत हो। वो अगर ये मजबूत होगा तो भारत जो है बहुत आगे जाएगा। विश्व गुरु जो हम आज ये बोलते हैं, इसको सच मायने में बनेगा विश्व गुरु। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही नेक ख्याल है यहाँ पर कि आप भारत में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जिस ख्याल को लेकर आगे चल रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करते हुए उन्हीं को आगे बढ़ाने में, कहते हैं ना कि एक नागरिक की तरह, एक सच्चे नागरिक की तरह आप अपने देश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। मैं उनके इस नारों को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं हिंदू की भी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम की भी बात कर रहा हूँ, पंजाबी की भी बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और तभी शायद ये वर्ल्ड पीस का जो आपका पर्पस है वो सॉल्व होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि वर्ल्ड नॉलेज समिट मेक्सिको के भी आप एम्बेसडर हैं, जी जी। तो ये वर्ल्ड नॉलेज समिट क्या है? वर्ल्ड नॉलेज समिट जो है आभा जी, वो हम लोग अभी पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उन तमाम देशों के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग अभी ये कलेक्ट कर रहे हैं, और उस एजुकेशन ये सिस्टम को कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको यूएन में सबमिट करेंगे। इसको वर्ल्ड नॉलेज समिट हम लोग बोलते हैं। ओके। और ये मैक्सिको का है ये, और मैं इसमें इंटरनेशनल एम्बेसडर हूँ इसमें मैं। तो हम लोग तमाम देश के ये शिक्षा का जो वहाँ का ये माहौल, मतलब किस तरह का शिक्षा वहाँ पे है, और वहाँ पे गरीब बच्चे को लोग किस तरह से ये शिक्षित कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग वहाँ से लेके इसको फिर यूएन में सबमिट करेंगे हम लोग। और इससे क्या बेनिफिट होगा जब हम सब सिस्टम, सबका एजुकेशन सिस्टम एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं उससे? इससे इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमको ये मालूम चलेगा कि कहाँ पे किस देश में किस तरह की एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे चल रहा है, और गांव जो ग्रामीण इलाका जो होता है वहाँ पे, चूँकि देखिए टाउन में ये पढ़ाई का एक माहौल अच्छा है, वहाँ पे हर कुछ वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन गांव में क्या है कि गांव में बच्चे अभी भी नहीं पढ़ते हैं सही से वो, और बहुत कम उम्र में वो बूढ़े की तरह हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाप उनका ये खेतों में काम करता है, और वो उसके ये बोझ के तले वो भी जाके बूढ़े की तरह हो जाते हैं बच्चे वहाँ के। तो हमें गांव पे करना है फोकस, इसलिए हम लोग वर्ल्ड नॉलेज समिट जो हमारा है इसका मेन फोकस हमारा गांव पे है। गांव में कैसे मतलब एजुकेशन सिस्टम को हम लोग आगे लेके जा सकें। ओके, बहुत ही बढ़िया। ये समिट आई थिंक जो जिस तरह से आपने बताया, मैं उसकी एक कल्पना करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब गांव-गांव तक आपकी ये सिस्टम प्रणाली जो हमारी है पूरी पढ़ाई की, ये पहुंच जाएगी, तो शायद हर एक बच्चा पढ़ा लिखा, आने वाला हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा, हर देश का, पूरी दुनिया में। तो आगे मेरा सवाल, अब मैं आती हूँ वर्ल्ड पीस के ऊपर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो आज के इस डिस्टर्ब वर्ल्ड में, जहां पर अभी बीच में कुछ दिनों के लिए अगर मैं कहूँ थोड़ी सी शांति तो थी, पर फिर भी फिर से अभी ये जो ओमिक्रॉन करके एक नया वेरिएंट आ गया है कोविड का, इसने फिर से पूरी दुनिया में लोगों के दिलो दिमाग पर एक दहशत से फैला दी है। फिर से एक ऐसी लहर उठा दी कि जहां लोगों की शांति थोड़ी सी भंग हो गई है, जहां थोड़े से लोग रिलीव होकर के थोड़ा खुश होने लगे थे, थोड़ी चीजें लेवल पे आने लगी थी, वहां अब फिर से लोगों के दिलों में दहशत होने लगी है। तो ये आपके हिसाब से ऐसे समय में भी लोग किस तरह से अपनी लाइफ में एक सुकून का माहौल रख सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया आबा जी, और मैं इस पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें मीडिया से दूर रहना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पैनिक नहीं होना है। पैनिक मतलब जैसे ये कोरोना अगर है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को मतलब मान लीजिए कि बीमारी जो है अभी के दौर में, मतलब गोली और बंदूक से किसी को नहीं मारा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है जैविक हथियार से। और ये चीज़ जो है काफ़ी सालों से हो रही है, लेकिन लोग इससे अभी अवेयर नहीं है। लोगों से हमारी ये अपील है, जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनसे हमारी यही अपील है कि आप मीडिया को ना देखें, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाएं, धार्मिक चीज़ों की तरफ जाएं, धार्मिक स्थलों की तरफ जाएं, धार्मिक किताबों को पढ़ें। क्योंकि जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, और वो होता है भगवान की शरण। और वहां पे जो आपको शांति मिलेगी, वो शांति आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। भारत के लोगों का इम्यूनिटी काफी मजबूत रहता है, उन्हें किसी के डोज की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि
भारत के ज्यादातर लोग जो है वो मेहनती होते हैं, वो खेतों में काम करते हैं। उन्हें किसी भी तरह के दोस्त की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो हौसले की, सब्र की, और उन्हें अपने आसपास माहौल बनाना है कि आपको किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है। कोरोना है तो है, अपनी जगह पे रहे वो। मुझे कोरोना को लेकर बातें नहीं करनी है, चर्चा नहीं करनी है, मीडिया नहीं देखना मुझे। मीडिया में वो दिखा रहा है, क्योंकि ये कोशिश एक बार फिर से की जा रही है, लोग ये पैनिक हों। अब आप ये देखिए, कोरोना की वजह से कितने लोगों का रोजगार छिन गया, उनका नौकरियां चली गई, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो चुकी है आज के डेट में। अब आप बताइए कि ये आखिर कौन सी बीमारी है कि ये इतने लोगों को अफेक्ट कर रही है ये? और अगर ये महामारी है तो ये एक बार आके चली जाती, बार बार क्यों आ रही है? ये एक आपको सवाल है ये। और इस हाल में हमें अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना है, धार्मिक किताबों से हमको अपने आप को जोड़ के रखना है। सबसे बड़ी चीज है ये। हमें धर्म के बताए हुए रास्तों पे चलना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। सो यहाँ पर मैं भी आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जब चारों ओर से हर तरफ दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता सुझाई नहीं देता, तो मेरे ख्याल से भगवान की शरण से ज्यादा कोई भी उम्दा रास्ता नहीं है। क्योंकि जब आप दिल से उनकी भक्ति में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग दोनों में एक अवेयरनेस आती है, और भगवान आपको उस अवेयरनेस के जरिए रास्ता दिखाते हैं कि भाई बिल्कुल, आगे आप कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो दानिश, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, थोड़े समय पहले सेशन से पहले आपने बताया मुझे कि आप कुछ स्कैम, कोविड स्कैम को एक्सपोज करने की अभी मुहिम में हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने की आपकी एक बहुत जबरदस्त आपका एक विजन है। तो इसके बारे में हमें बताइए। देखिए मैडम, सबसे पहली चीज यह है कि अभी जो हो रहा है, चीजें जितनी भी चीजें हो रही हैं अभी, वो कहीं ना कहीं एक स्कैम है वो। और स्कैम एक दिन में नहीं बनता है। जैसे मतलब आभा जी ने शो किया मेरे लिए, तो आपको ये मतलब एक दिन में कर दिया उन्होंने। स्कैम एक दिन में नहीं होता है। स्कैम के लिए रिसर्च किया जाता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल वो लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं कि मैं अगर ये काम करूंगा तो इसका रिएक्शन लोगों पर क्या होगा। सबसे पहली चीज ये है कि वायरस जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। पहली चीज, जब आप वायरस को देख ही नहीं रहे हैं तो आप फिर कैसे कह सकते हैं? पहला चीज है ये। दूसरा चीज है कि आपको ये चीज मालूम है कि ये वायरस जो है पहले बच्चों पे अटैक करेगा, बूढ़ों पे अटैक करेगा, जवानों पे अटैक करेगा। आपको ये कैसे पता चल जाता है? हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप कह दें कि ये हिंदू को अटैक करेगा, पहले मुसलमान को करेगा, फिर आपको क्रिश्चियन को करेगा, फिर पंजाबी को करेगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए जो होड़ मचाई जा रही है, कोरोना उसी का पार्ट एक है। और नए विश्व व्यवस्था जो ये बनाना चाह रहे हैं, उसके नाम पर ये पूरे दुनिया को एक देश में सीमित करना चाहते हैं। एक भाषा रखना चाहते हैं, एक देश रखना चाहते हैं, एक भगवान, एक मजहब, एक किताब और एक करेंसी। ये इनका मिशन है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये काफी सारी मूवी में भी आ चुका है, गूगल पे मौजूद है। बॉलीवुड की एक मूवी है आतिश, जो 1991 में आई थी। उस मूवी के 17 मिनट के बाद कोई भी देख सकता है। रेस्टोरेंट का एक सीन आता है जहां पे पीछे एक बोर्ड पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, और वहां पे वन गॉड वन रिलीजन इस तरह करके वो पूरा बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। मतलब ये अपनी चीजों को काफी पहले बता देते हैं। ये और बात है कि हम लोग उस चीज से अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हम लोग उस चीज से। और इनकी सीधी जंग जो हो रही है वो भगवान से हो रही है, क्योंकि ये लोगों पर हुकूमत करना चाहते हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, उनकी आज़ादी को छीनना चाहते हैं, उनको धर्म से दूर करना चाहते हैं, धार्मिक स्थलों से दूर करना चाहते हैं। उसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन शराब की दुकानें खुली हुई थी, मस्जिद बंद था, मंदिर बंद था, गुरुद्वारा बंद था, चर्च बंद था। अब आप इससे
अंदाजा लगा लीजिए कि ये शराब के समर्थक हैं, धार्मिक स्थलों के समर्थक नहीं है। ये स्कूल हमारा बंद था, शराब की दुकान खुली हुई थी। आखिर ये कैसी बीमारी है, शराब की दुकान को टच नहीं कर रही है और धार्मिक स्थल को टच कर जाएगी। और आप फिर से एक बार अब एक नया वेरिएंट लेके आए हैं ओमिक्रॉन के नाम से। अब इसके नाम से पूरी दुनिया में एक ये कोहराम मचाया जा रहा है, डराया जा रहा है लोगों को। मैं काफी न्यूज देख रहा हूं लेकिन मैं उन न्यूज़ों में ग्रुप में पोस्ट नहीं करता हूं क्योंकि मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, ऊर्जा देनी। कौन का ये मिल गया, आप ये डाटा लाते कहां से? आपको ये कैसे पता चलता है कि वहां पे आदमी जो है वो ये ओमिक्रॉन हो गया, उसको कहां से डाटा आता है आपके पास? और अगर ये स्कैम नहीं है तो फिर आपने पूरी दुनिया में इतना जो वैक्सीनेशन किया है, अगर इतने वैक्सीनेशन के बाद भी इस तरह की बीमारी वापस आ जाती है, इसका मतलब यह है कि आप वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को मारना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत यह है कि भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे अवेयर नहीं है बिल्कुल भी कि उनके साथ क्या किया जा चुका है। उनको घरों में कैद कर दिया गया है। और मैं मतलब किसी से बैर नहीं हमारा है, हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है, लेकिन आप कम से कम लोगों को गुलाम तो मत बनाइए। उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं आप उनको बोल रहे हैं घरों में रहिए अपने। ऐसे मत कीजिए, स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल अगर बंद होगा तो इससे क्या हो रहा है, असर क्या हो रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम आप देख सकती हैं कि हमारा जो अभी एग्जाम हुआ है ये सीबीएसई का, बिना पढ़ाई किए बच्चों को पास कर दिया गया, बिना एग्जाम दिए हुए बच्चों को पास कर दिया गया। अब बताइए कि उनका भविष्य क्या होगा? कौन सोच रहा है इसके बारे में? और अगर ये स्कैम नहीं है तो फिर आप बार बार जो ये बोल रहे हैं कि अब आपका डोज भी जो था वो आपको बेअसर हो गया है, बूस्टर का डोज भी जाके बेअसर हो गया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया में आया, ये चीज मीडिया में आता रहता है। तो जब बेअसर हो गया तो फिर आपने इतना वैक्सीनेशन क्यों किया फिर? और आप वेरिएंट का नाम कहाँ से लेके आते हैं? ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है, मैंने जब इसका गूगल में सर्च किया तो ये किसी इलेक्ट्रिक ये कंपनी का नाम है, ये ओमिक्रॉन। तो ये वेरिएंट भी लेके आ जाते हैं, वेरिएंट का नाम भी दे देते हैं, और ये भी बता रहे हैं कि मार्च में 52 देशों में फिर से अटैक होगा एक बार, कहने कितने लाख लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा। इनको सब चीज मालूम भी हो जाता। मुझे बहुत अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि लोगों को मतलब बड़े बड़े ये पढ़े लिखे लोगों को ये जो है उल्लू बना रहे हैं इसके नाम से। और कई लोगों ने क्या खुलासा कर दिया है, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफी लोगों ने खुलासा कर दिया कि ये एक तरह से स्कैम है। ये जिस तरीके से आपको HIV एड्स था या फिर आपको ये स्वाइन फ्लू था, सब स्कैम था ये। और देखिए, पहली चीज ये है कि मेडिकल साइंस एक ऐसी चीज है जहां पे कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके से उल्लू बनाया जा सकता है आराम से। अब मैं अगर अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, मुझे ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में 53 लोगों को हो गया कोरोना, 53 लोगों को हो गया कोरोना, मुझे ये बताया गया मीडिया के जरिए। अब आप हमको ये बताइए कि 53 लोगों का क्या आंकड़ा दे सकते हैं हमको आप? न्यूज पे चल गया, लोगों ने देख लिया, लोग डर गए। ये हो रहा है खेल। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भगवान कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर करेगा, क्योंकि ये सीधे लड़ाई कर रहे हैं भगवान से, और भगवान के हर बुराई का एक अंत होता है। बिल्कुल। मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि हम जितना मीडिया देखते हैं, जितना टीवी, स्पेशली टीवी, जितने समाचार हम देख रहे हैं वहां पर, और स्पेशली सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, वो एक्चुअली ज्यादा डर और दहशत क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर। बिकॉज लोगों को एक्चुअल चीज पता होती नहीं है, सुनी सुनाई बातों को या जो बोल दिया गया है उसको मान करके ये अपने आप में एक धारणा बना लेते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो एक जबरदस्त पैनिक क्रिएट होता है, और चीज जितनी सीरियस होती नहीं है उसको जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया जाता है और प्रॉब्लम बड़ी बना दी जाती है।
बिल्कुल तो बिल्कुल। डेफिनेटली हम आपके साथ हैं इस मुहिम में, और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम सभी दर्शकों को निवेदन करते हैं, जिस तरह से दानिश जी ने कहा कि ज्यादा मीडिया की खबरों पर, इन डेटास को लेकर के बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को, अपना खान पान सही सलामत रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए हेल्थ वाइज, और अपना ध्यान रखिए खुद। तो आई थिंक कभी वो बीमारी वाली कोई चीज आएगी ही नहीं, और हमें मेंटली बीमार होने से बचना है। जो बिल्कुल हमें बिल्कुल ये मीडिया बीमार कर रहा है, हम बिल्कुल बिल्कुल। ओमिक्रॉन या कोविड से तो बाद में बीमार होंगे, पर जी जी हम जी। पहले मीडिया की ऐसी फेक खबरों से जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल हमें बिल्कुल। इसका ध्यान रखना है। सो दानिश जी, इसके साथ ही हम आ गए हैं प्रोग्राम के एंड की तरफ। तो जी। अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा मैसेज दें, ताकि बिल्कुल वो भी आपके साथ, आपकी मुहिम में आपके साथ हो जाए। बिल्कुल। तमाम दर्शकों को हमारा बस एक मैसेज यही है कि हमारे जो भी लीडर गुजरे हैं और हमारे देश को आज़ाद करवाने में जिन जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन लोगों को हमेशा याद रखें और तमाम मजहब की इज्जत करें, सम्मान करें उनका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों की मजबूती, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये तभी साकार हो सकता है जब हम तमाम धर्म के लोगों को और उनके त्यौहार में शामिल होंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ और हमारे यहाँ अगर ईद होती है, तो मैं आभा जी को दावत दूंगा कि आप हमारे यहाँ ईद पे आइए। वो जब हमारे पास आती हैं, ये एक भारत है, ये खूबसूरत भारत है। आभा जी अगर होली मनाती हैं और वो मुझे कहते हैं दानिश जी आप हमारे होली पे आइए, और मैं जब इनके घर जाता हूँ तो ये मुझे अबीर लगाती हैं, वो भारत है। वो भारत का मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, ऋषि मुनि गुजरे हैं, सूफी गुजरे हैं, ये सब हमारे आदर्श हैं। ये हमें इन सब लोगों को हमेशा याद रखना है, जोड़ के रखना है। भारत को लिए तमाम मजहब, तमाम समुदाय, तमाम जाति के लोगों को आना होगा, और जो नफरत का माहौल है उसको मोहब्बत के माहौल में बदलना होगा। हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब समाज में, देश में बेहतर काम करें, मोहब्बत को फैलाएं, प्रेम को फैलाएं और नफरत की दीवार को तोड़ने का काम करें। किसी मुसलमान से नफरत ना की जाए, किसी हिंदू से नफरत ना की जाए, किसी ईसाई से नफरत ना की जाए और किसी सिख से नफरत ना की जाए, बल्कि इंसानियत को महत्व दिया जाए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। और दूसरी चीज यह है कि भारत को हम सब ने बहुत आगे बढ़ाया है और बढ़ाएंगे भी। बस गुजारिश यही है कि आप मीडिया से बचिए। मीडिया एक ऐसा जहर है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये धार्मिक चीजों को पढ़ें, धार्मिक स्थलों की तरफ जाएं और धार्मिक चीजों को पढ़ें, चाणक्य को पढ़ें, और जो भी हमारे बड़े बड़े सूफी गुजरे हैं उन लोगों को स्टार्ट कीजिए पढ़ना, स्पिरिचुअल चीजों की तरफ जाइए। वाह! अब यहाँ पर मुझे एक बहुत ही फेमस हिंदी मूवी का गीत याद आ रहा है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, हम प्रेम के पंछी हैं देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। So thank you मैं so much. Yeah. आपा जी, मैं यहाँ पे एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे। इरशाद। जी। मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और मोहब्बत वतन से शर्त है, ये ईमान कहता है। मोहब्बत वतन से शर्त है, ये ईमान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सो थैंक यू सो मच सैयद दानिश, इस प्यारी सी शायरी के लिए, और ऑफ कोर्स इतने अच्छे विचार जो आपने यहाँ पर आज शेयर किए हैं। डेफिनेटली हमारे लोगों के अंदर आज काफी अवेयरनेस आई होगी इस कार्यक्रम को देखने के बाद,
और जी। मैं आपके जितने भी आपके एफर्ट्स हैं जो आप इस मुहिम में लगा रहे हैं, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं, ताकि आप इसमें आगे और सफलता पाएं। इसके बहुत बहुत साथ ही शुक्रिया आभा जी। इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम को यहाँ अंत करेंगे। This is Abha Jadhav signing off now. Stay happy, healthy, and keep watching Spotlight with Abha. Do take very good care of yourself and your dear ones. See you soon in the next episode. Till then, bye bye, namaste, Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी।